ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IP ਐਂਡ ਯੂਥ ਸਮਥਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। IP ਐਂਡ ਯੂਥ। ਇਟ ਵਾज ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 2000 ਵਿਪੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀਕ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਫॉर ਆਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਫॉर ਪੀਸ। ਇਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੌਨ ਲੌਰੀਅਸ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਲੌਰੀਅਸ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੇਪਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੇਪਨ ਜੋ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਰੈਡਬੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਲੂਇਸ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਜੀਓ ਪੈਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਮਾਇਕਨ ਓਲੰਪਿਕ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਇਲੇਨ ਥੌਮਸਨ ਹੈਰਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੈਨਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਲੌਰੈਂਸ ਟੀਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਾ ਰਾਡੂਕਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡਰੇ ਰੂਬਲੇਵ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਓਪਨ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋਵਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड या ऑर्गेनाइजेशन। इसने MOU साइन किया है किस दे लई? एनकरेज रिसर्च टू इशू रिलेटिंग टू इंडियाज़ पावर सैक्टर, इंडिया के पावर सैक्टर के रिलेटेड इशूज़ ने जो उन्होंने रिजोल्व करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया पोसोको कंपनी द्वारा, पोसोको कंपनी द्वारा। ठीक है जी। तो यह कितने कितना है? IIT दिल्ली। किस दे नाल एग्रीमेंट साइन होया? ये IIT दिल्ली के नाल एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड एक्सपेंशन ऑफ इट्स पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, with SBI cards and payment services to power the next leg of digital payments। डिजिटल पेमेंट्स ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SBI ਕਾਰਡਸ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ TCS ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है जी। याद रखांगे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का हैडकुआटर गुरुग्राम हरियाणा दे विच है, गुरुग्राम हरियाणा दे विच है। कई बार पूछा जाता है SBI कार्ड्स का हैडकुआटर। नैक्सट है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सिपरी, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का मिलिटरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होया 76.6 बिलियन पहुँच गए, 76.6 बिलियन पहुँच गए पिछले साल नालों 0.9%, पिछले साल नालों 0.9% इंक्रीज़ देखा गया। ठीक है जी। इस इंक्रीज़ के नाल इंडिया टोटल किनवें नंबर पर, किनवें नंबर पर है? स्पेंडिंग दे विच तीसरे नंबर पर। ठीक है जी। वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडर है, मिलिटरी के उत्ते खर्चा करने वाली कंट्री। सब तो ज़्यादा खर्चा कौन करती है? USA करती है। सैकेंड नंबर पर चाइना है, फोर्थ नंबर पर UK है और पंजवें नंबर पर अगर आप गल करिए रशिया, पंजवें नंबर पर रशिया है। ठीक है जी। याद। नेक्स्ट है, who is appointed as co-chairman of युवा इनिशिएटिव, युवा इनिशिएटिव है जो यासुमासा किमूरा दे नाल यूनिसेफ दे को चेयरमैन बनाए गए ने। कौन बनाए गए ने? किहड़े इंडियन परसन नूं बनाया गया है? अश्विन यार्डी नूं। किन्हां नूं बनाया गया है? अश्विन यार्डी। ठीक है जी। याद रखांगे। इस तो अलावा AP अब्दुल्ला कोटी का नाम आप डिस्कस किया सी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के हैड बनाए गए सी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के हैड चेयरमैन बनाए गए सी। और मुनावारी बेगम और महफूजा खातून नूं वाइस चेयरमैन बनाया गया सी। पहली बार 2 वूमेंस नूं वाइस चेयरमैन बनाया गया सी, इस करके यह इंपॉर्टेंट बनया सी। याद रखा। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गोलोब बिकम्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने किस कंट्री के? किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट गोलोब बनाए गए ने? रिसेंटली स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने रॉबर्ट गोलोब। ठीक है जी। इस तो अलावा कंट्रीज न्यूज़ के विच ने डिटेल के विच डिस्कस भी किया सी, दोबारा रिवाइज करांगे। इंडिया होस्ट करेगा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। केड़ी कंट्री वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का 21st एडिशन ऑर्गेनाइज करेगी? इंडिया करेगी, मुंबई के विच करेगी। थीम रहेगी बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है, इंडिया बिकम्स सेकेंड कंट्री आफ्टर USA। इंडिया USA तो बाद दूसरी ऐसी कंट्री बनी है
जिसने लॉन्च किया टू लॉन्च ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल विद यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन दे नाल ट्रेड एंड टैक्नोलॉजी काउंसिल की शुरुआत की गई है। नैक्सट है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फर्स्ट फ्रेंच प्रेजिडेंट बने ने जिन्होंने दूसरी टर्म शुरू की है। पिछले 20 सालों के दूसरी टर्म शुरू करने वाले पहले फ्रेंच प्रेजिडेंट। सिंपली याद रखेंगे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम, फ्रांस के प्रेजिडेंट का नाम की है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। नैक्सट है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड दिता गया। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड दिता गया। बेसिकली जॉन एफ कैनेडी USA के प्रेजिडेंट रह चुके हैं और इन्हों के नाम के उत्ते एक अवार्ड शुरू किया गया। इस अवार्ड को इस साल 5 लोगों को दिता गया। 5 लोगों को दिता गया जिस दे विचों एक नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। वही नाम आप डिस्कस कर रहे हैं यूक्रेन के। यूक्रेन के जो प्रेजिडेंट ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अलॉन्ग विद विच स्टेट गवर्नमेंट, किस स्टेट के नाल मिल के MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन नागचला। नागचला है इत्थे MOU साइन किया गया कि स्टेट के नाल, तो इसने एग्रीमेंट साइन किया हिमाचल प्रदेश के नाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट दे विच नागचला प्लेस है और इत्थे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है जी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद रखांगे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नाल वे है ज्योतिरादित्य सिंधिया दे कोल। ठीक है जी। बाकी स्टेट्स की गल करते हैं, इन्हों के रिलेटेड न्यूज़ आप डिस्कस की। जमतारा डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। जमतारा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट बनया इंडिया का जिथे लाइब्रेरी है, हर विलेज दे विच लाइब्रेरी है। तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राज दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व करने के लिए अनाउंसमेंट की है। महाराष्ट्र सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने आदित्य ठाकरे, इन्होंने इनॉग्रेट किया मुंबई का पहला कंप्लीटली डिजिटल बस सर्विस। मुंबई की पहली कंप्लीटली डिजिटल बस सर्विस या टैप ऑन बस सर्विस, टैप ऑन बस सर्विस भी इसमें कहा जा रहा है। टैप ऑन बस सर्विस की शुरुआत की गई है मुंबई दे विच। इसने की है एनवायरमेंट मिनिस्टर। कित्थे दे एनवायरमेंट मिनिस्टर? मुंबई के एनवायरमेंट मिनिस्टर, या कह सकते हैं महाराष्ट्र के एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे। नैक्सट चलते हैं अज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे। अज की न्यूज़ नूं डिटेल्ड फॉर्म दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहले शेयर जरूर कर दो जिथे शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सैशन इंपॉर्टेंट डेज़ के नाल। इंपॉर्टेंट डेज़, सब तो इंपॉर्टेंट डे है जो अज का इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल चरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे। इंटरनेशनल चरनोबिल डिजास्टर रिमेंबरेंस डे। डिजास्टर रिमेंबरेंस डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। यह 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। On this day in 1986, explosion occurs at Chernobyl nuclear power plant, Ukraine, and it was first observed in 2016. इस दिन 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ एक न्यूक्लीयर पावर प्लांट ਸੀਗਾ चरनोबिल नाम का। इत्थे की हो गई सी लीकेज हो गई सी, रेडिएशन लीक हुई सी और जिस करके काफ़ी लोगों की डेथ हुई सी। ठीक है, तक मिलियंस दे विच या कह सकते लखां करोड़ों के विच लोग इफेक्ट होए सी। इस दे आले दुआले रहन वाले लोग इफेक्ट होए सी और इस करके इस दिन को याद रखने के लिए, इस दिन को अवेयर करने के लिए, न्यूक्लीयर प्लांट्स के रिलेटेड अवेयर करने के लिए यह दिन पहली बार 2016 के विच ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा वर्ल्ड लैबोरेटरी एनीमेशन लिबरेशन वीक, वर्ल्ड लैबोरेटरी एनिमल लिबरेशन वीक है जो 20 तो लैके 26 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया और वर्ल्ड डे ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया।
वर्ल्ड डे ऑफ लैबोरेटरी एनिमल्स 24 अप्रैल ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਲਡ ਡੇ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਟ ਵਰਕ। ਵਰਲਡ ਡੇ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਟ ਵਰਕ ਇਹ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नेक्स्ट है मैक्स वर्सेटेपन। मैक्स वर्सेटेपन, मैक्स वर्सेटेपन ऑफ नीदरलैंड वॉन इमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ही ड्राइव्स फॉर रेडबुल। जो मैक्स वर्सेटेपन ने रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने एमेलिया रोमागना टाइटल जिते। एमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है जो इटली के विच ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसनू जितया है मैक्स वर्सेटेपन ने। ठीक है जी, कल के दिन डिस्कस किया सी लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हों दिता गया। इस तो इलावा जो बाकी के ग्रैंड प्रिक्स ने वह भी इंपोर्टेंट बननगे। इस साल 4 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स है जो चार्ल्स लेक्रेक ने जीतिया सी। चार्ल्स लेक्रेक फरारी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। मोनैको कंट्री तो बिलोंग करते। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सेटेपन ने जीतिया सी। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्रेक ने जीतिया सी। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीतिया सी चार्ल्स लेक्रेक। ठीक है जी, नैक्सट है सेबी। सेबी की गल करते हैं। सेबी है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने कमेटी बनाई, एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डाटा अंडर चेयरमैनशिप ऑफ MS साहू। MS साहू फॉर्मर चेयरमैन ऑफ IBBI। मार्केट डाटा दे एडवाइजरी कमेटी है जो ये बनाई गई है MS साहू के चेयरमैनशिप के अंडर। MS साहू की चेयरमैनशिप के अंडर जो कि IBBI के चेयरमैन रह चुके हैं। IBBI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी, 1992 के सेबी बनाई गई सी। मुंबई के हैडकुआटर है। अजय त्यागी इसके हैड होंगे सी। इन्हों रिप्लेस करके मधाबीपुरी बुच ये सेबी के हैड बनाए गए सी। रीसेंट दी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इंपोर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? कमेटी के मार्केट डाटा कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं MS साहू। नैक्सट है राघव चड्डा। राघव चड्डा राज्य सभा मैंबर फ्रॉम पंजाब। राघव चड्डा राज्य सभा मैंबर ने पंजाब तो इज़ अमंग सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट 2022। राघव चड्डा ने जो राज्य सभा मैंबर ने रिसेंटली आप डिस्कस किए सी पंजाब के विचों राज्य सभा मैंबर अपॉइंट किए गए थे, जिन्हों के विचों एक सीगे राघव चड्डा। ठीक है जी, बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 1971 के विच बनाया गया सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कोलोगनी स्विट्जरलैंड के विच जिसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की करे क्लास ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट बनाई है। ठीक है जी, इस दे विच जो 40 साल तो घट एज के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने उन्होंने शामिल किया जाता। ठीक है जी, इंडिया के विचों होर भी नाम ने, लेकिन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब लैवल पे वो नाम रहेगा राघव चड्डा क्योंकि ये राज्यसभा मैंबर ने पंजाब तो रिसेंटली बनाए गए ने, इस करके इंपॉर्टेंट रहेगा। आम आदमी पार्टी तो बिलोंग करते हैं। दिल्ली के विच बेसिक आई थिंक इन्होंने लवे जल जो बोर्ड सीगा वो हैंडल कर रहे सी और हुण इन्हां लवे राज्य सभा मैंबर ने पंजाब दे। नैक्सट एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। एशिया का सब तो वड्डा इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है जो इसका की नाम है आहार। इसका नाम है आहार।
और यह शुरू होया दिल्ली दे विच। यह कित्थे शुरू होया? दिल्ली दे विच। आहार मेला डायरैक्टली पूछा जा सकता है। आहार मेला है जो आहार फेयर है, ये कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली दे विच। इसनों ऑर्गेनाइज करती है अपेडा। अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया दे विच, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसैस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली जो फ्रूट्स वगैरह होंगे ने उन्होंने खराब होने तो पहले अपनी जगह के उत्ते पहुँचाना अपेडा का काम है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड काम सारा अपेडा ऑर्गेनाइजेशन देख रही है और यही ऑर्गेनाइज करती होंगी है आहार नाम का एशिया का सब तो वड्डा इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी मेला। कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली दे विच। अपेडा का हैडकुआटर भी दिल्ली दे विच है और अपेडा 1986 दे विच बनाई गई सी। अपेडा बनाई गई सी 1986 दे विच। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप है जो ये मनीला फिलीपींस दे विच शुरू की गई है। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप नू मनीला फिलीपींस दे विच शुरू किया गया। ठीक है जी। जिस तरीके नाल रैसलिंग एशियन चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट रही, कित्थे रही सी? उलन बतूर मंगोलिया दे विच। उसी तरीके नाल बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप रही चल रही है मनीला फिलीपींस दे विच। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नरेंद्र सिंह तोमर। मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने हैज़ इनॉग्रेटेड किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन की शुरुआत की गई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कितना लवे है? नरेंद्र सिंह तोमर लवे है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन ने? MP ने, लोकसभा MP ने, मोरियाना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने जो एन चंद्रशेखरन ये चेयरमैन बनाए गए ने टाटा डिजिटल दे जिसने रिसेंटली टाटा नियो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट की थी। आप याद होएगा रिसेंटली डिस्कस किया कि टाटा ने रिसेंटली अपनी एक डिजिटल एप्लीकेशन बनाई, डिजिटल पेमेंट्स के लिए एप्लीकेशन बनाई है। इसका की नाम रखा जाएगा? इसका नाम रखा गया सी नियो। ठीक है जी। और जो टाटा डिजिटल है इसके हैड बनाए गए ने एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली इंडक्टेड शिप ऊर्जा प्रवाह एट बारूच गुजरात दे बारूच दे विच ऊर्जा प्रवाह नाम की शिप नू इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इंडक्ट किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड 2 फरवरी नू, याद रखांगे 2 फरवरी नू अपना फॉर्मेशन ईयर ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तो इलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हैड ने VS पठानिया ने के नटराजन इसके हैड होंगे सी, उन्होंने रिप्लेस करके VS पठानिया बनाए गए सी। नेक्स्ट है इंडिया एंड मालदीव्स विल एस्टैब्लिश ट्रांसमिशन इंटरकनैक्शन फॉर रीन्यूएबल पावर ट्रांसफर। रीन्यूएबल पावर दी ट्रांसफर के लिए इंडिया और मालदीव्स ट्रांसमिशन इंटरकनैक्शन बनाएंगे। सिंपली गल कर सकते हैं कि जो रीन्यूएबल पावर है इंडिया प्रोवाइड करवाया करेगा मालदीव्स नू और इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली किस कंट्री के नाल रीन्यूएबल पावर ट्रांसमिशन के लिए एग्रीमेंट साइन होया है? तो याद रखांगे मालदीव्स के। किहड़ी कंट्री के नाल? मालदीव्स के नाल। कैपिटल माले है, याद रखांगे। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इसके हैड ने। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर
गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट पैरिस बुक फेयर 2022। किस कंट्री नू रीसेंटली पैरिस बुक फेयर दे विच गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का सन्मान दिता गया, तो यह दिता गया इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है केरला। केरला हैज़ साइंड MOU विद नीदरलैंड। केरला ने MOU साइन किया नीदरलैंड के नाल फॉर कॉस्मोस मैलाबैरिकस प्रोजेक्ट टू इलस्ट्रेट केरला हिस्टरी। बेसिकली कल्चर नू प्रमोट करने के लिए, केरला की हिस्टरी नू प्रमोट करने के लिए, और केरला की हिस्टरी दे विच भी स्पैशली 18th सेंचुरी की जो हिस्टरी है, 18th सेंचुरी की जो हिस्टरी है, इसनू प्रमोट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन होया नीदरलैंड के नाल फॉर कॉस्मोस मैलाबैरिकस। ठीक है जी। केड़ी स्टेट ने नीदरलैंड के नाल एग्रीमेंट साइन किया है, या पूछा जाएगा केरला ने केड़ी कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। नीदरलैंड की गल करते हैं, कैपिटल हेग है, याद रखांगे। और हेग दे विच जो इंपॉर्टेंट हैडकुआटर है वो याद रखांगे ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हैडकुआटर हेग नीदरलैंड दे विच। यूनाइटेड नेशनस की इकलौती 6 जो बॉडीज़ ने उन्होंने विचों इकलौती ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट 7 कैंसर हॉस्पिटल्स इन डिब्रूगढ़ असम ऑन 28 अप्रैल। यानी कि अज दे दिन 7 कैंसर हॉस्पिटल्स इनॉग्रेट किए जाएंगे डिब्रूगढ़ असम दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इसने MOU साइन किया है हिमाचल प्रदेश ने। कल डिस्कस किया सी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए। और उसी तरीके नाल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने भी एग्रीमेंट साइन किया है रोपवेज बनाने के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवेज अंडर पर्वतमाला स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट दे विच, याद होए अगर बजट अनाउंस किया गया सी, और बजट दे विच जो रोपवेज के लिए पर्वतमाला स्कीम लॉन्च की गई सी, उसी पर्वतमाला स्कीम के अंडर हिमाचल प्रदेश के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। रोपवेज हिमाचल प्रदेश के विच कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट है रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी का जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट है हैज़ बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव अमृत सरोवर। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 साल इंडिया की इंडिपेंडेंस दे 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी सैलीब्रेशन चल रही ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम तो। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। तो इसी के तौर पर अनाउंसमेंट की सी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के विच 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 75 पॉन्ड्स कह सकते हैं, अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और रामपुर डिस्ट्रिक्ट इसी इनिशिएटिव के अंडर यूपी का जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जिथे एक अमृत सरोवर अच्छे तरीके नाल प्रॉपरली रेडी हो चुके। ठीक है जी। पहला डिस्ट्रिक्ट जिथे अमृत सरोवर बनाया गया सी, याद रखांगे रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। इसी तरीके नाल कल दी न्यूज़ है जो झारखंड वाली वह याद रखांगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। हर एक विलेज दे विच लाइब्रेरी बनाई गई है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होएगा। सैशन
लाइक और शेयर ज़रूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड बाय।